Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back. Today's lecture is specifically going to be to cover up the objective department or the part of FYJC 11th Standard Accounts Chapter 1, which is very visible, जो टाइटल में आपको आसानी से दिखता होगा. याद रखिए कि जो मैं अभी करने वाला हूँ उसका पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होगा. तो आपको ऐसा नहीं है कि अभी के अभी लिख के रखना है, अभी आप सब समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्टिव्स विच हैव ऑलरेडी बीन डन इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर. कुछ नया नहीं है, बट इट इज़ अ रिकैप of what you can expect in the PDF. Fine, let me get started. So, answer in one sentence. Everyone has around 5 parts, 8 or 10 parts. Okay, तो वो अलग अलग ऐसे हिस्से होते हैं. मैं सारे आपको explain अगर ज़रूरत पड़ा तो, या आंसर एटलीस्ट कम से कम मैं दे देता हूँ. What is book keeping? सबसे बेसिक सवाल. देखो भाई, बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग होता है सिस्टमैटिकली, जहाँ पर हम रिकॉर्ड्स एक दुकान के, एक इंडिविजुअल के, एक कंपनी के लिखते हैं. टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है. बुक कीपिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट. साइंस क्योंकि हम रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे, आर्ट क्योंकि हम इसके नीटली लिखेंगे. ओके, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, करेक्टली ऑब्वियसली ना, गलत थोड़ी हमको करना है. इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन, हमने वो भी पढ़ लिया है कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. जब हम लेन देन करते हैं तो या तो हमें किसी को या तो कोई हमें पैसे देता है. सिंपल एज दैट. वन लाइन कहा है, स्टिक टू वन सेंटेंस. बड़ा ऑटोबायोग्राफी मत बनाइए. नेक्स्ट वन, व्हाट इज मेंट बाय गुड्स? गुड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो एक दुकानदार अपनी दुकान में रखता है और वो उसको बेचना चाहता है, अपने लिए वो यूज़ नहीं करना चाहता है. वो कस्टमर आएगा, वो उसके साथ में डील करेगा और वो उसको बेच देगा. तो वो मर्चेंडाइज, कोमोडिटी या आर्टिकल्स एक दुकान में एक दुकानदार जिसके ट्रेड करने के लिए, लेन देन करने के लिए वो खुशी खुशी राज़ी होता है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ कैपिटल? हर दुकान का एक दुकानदार होता है या दुकानदारनी, मतलब कोई ना कोई तो ओनर रहेगा. वो ओनर उस बिजनेस में कुछ ना कुछ निवेश करेगा, इन्वेस्ट करेगा. एनीथिंग, इट कैन बी मनी or it can be something other than money. When it is your birthday, you will get a gift, but you can get a gift in money or you can get a gift article also. दोनों गिफ्ट ही होते हैं ना. हाँ, तो here
तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, अभी ये टोटल के अंदर पैसा भी आता है और पैसे के अलावा जो मालिक ने बिजनेस को दिया है वो भी आते हैं। फॉर्मूला भी है, एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लाइबिलिटी मीनिंग एसेट subtract liability is also called as capital. Next thing, what is drawings? बिजनेस के अंदर से दुकानदार जो लेता है, पैसे ले सकता है, गुड्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है। एक दिन के लिए अपने फैमिली को घुमाने के लिए, गिरगांव चौपाटी जाने के लिए वो डिलीवरी वैन लेके जा सकता है, वो ड्रॉइंग्स होता है। सो अपने यूज़ के लिए ओनर कुछ ले या अपने परिवार के यूज़ के लिए ले, ड्रॉइंग्स। Fifth and I think the last one, what is goodwill? See, reputation, इज्जत, everybody tries their best, हर स्पोर्ट्समैन, हर फिल्म पर्सनैलिटी ओके अपनी पूरी कोशिश करता है। पॉलिटिशियन भी करते हैं, बट काफ़ी पॉलिटिशियन लोगों का गुडविल तो नहीं है। हाँ, सो गुडविल का मतलब क्या है? अच्छा रेप्यूटेशन, क्योंकि मेरा रेप्यूटेशन अच्छा है लोग मुझे ज़्यादा वोट करते हैं, क्योंकि मेरा रेप्यूटेशन अच्छा है मेरे पिक्चर ज़्यादा टाइम के लिए चलती है, क्योंकि मेरा रेप्यूटेशन अच्छा है लोग ज़्यादा रन की उम्मीद मुझसे करते हैं, ज़्यादा गोल की उम्मीद मुझसे करते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल भाषा में लिखा गया है, मीन्स द एग्रीगेट ऑफ दोज इनटेंजिबल एट्रीट्यूड्स। व्हाट डज इनटेंजिबल मीन? गुडविल का कोई शक्ल नहीं होता है, गुडविल के आंखें, नाक, मुंह, कान होता नहीं है, इसके लिए इसको कहते हैं इनटेंजिबल, नहीं दिखने वाला गुण, attributes of a business which contributes to its superior earning। superior earning का मतलब क्या है? मैं भी बेचता हूँ, वो भी बेचता है, मेरा बगल का दुकान, बट मैं बेचता हूँ 12 रुपये में, वो बेचता है 10, तो मैं 2 रुपया ज़्यादा कमाता हूँ और पब्लिक मेरी खरीदती भी है क्योंकि मेरा अच्छा नाम है। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज गुडविल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन वर्ड। ये जल्दी जल्दी हम लोग रफा दफा कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दिस इज व्हाट इज दिस सब्जेक्ट अबाउट। बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 2, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर। ये हम लोग ने स्टार्ट में किया है, कैपिटल, इट कैन बी मनी प्लस समथिंग अदर देन मनी। थर्ड पॉइंट, अ पर्सन, एक ऐसा इंसान टू हुम अमाउंट इज पेएबल, आपको, आपके घर वालों को, दूध वाले अंकल को पैसा देना है, न्यूज़पेपर वाले अंकल को पैसा देना है, प्लम्बर आया घर पे तो उसको पैसा देना है, इलेक्ट्रिशियन आया घर पे तो उसको पैसा देना है। ये लोग कौन है? क्रेडिटर। ये लोग सप्लाई करते हैं और आपको इनको पैसे देने हैं, बराबर। तो इन लोगों को अकाउंट्स की भाषा में कहा जाता है क्रेडिटर, इंसान, ओके, जिसको हमको पैसे देने हैं। पॉइंट नंबर 4, एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स, ट्रांजैक्शन, लेन देन, गिव एंड टेक। सिंपल है, आई विल नॉट टेक मच टाइम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, मतलब एक्सपेंस, खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम, तो लॉस होगा, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस में नुकसान होगा। इनकम ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। अ पर्सन, एक इंसान, हुज एसेट्स आर सफिशिएंट इनफ टू मीट हिज बिजनेस ऑब्लिगेशन। मैनी स्टूडेंट्स को पढ़ने में ही पढ़ भी लेते हैं बट अंडरस्टैंड करने में टाइम जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके पास जो एसेट है, बराबर, एसेट का मतलब उसकी खुद की चीजें, ओके, इनफ टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशंस, मतलब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी, चीजों को पे करने की, लोगों को पे करने की, बैंक लोन को पे करने की, क्रेडिटर को पे करने की। हाँ, तो वेरी सिंपल, अगर मेरे एसेट ज़्यादा है, बराबर, मतलब 10 लाख एग्जाम्पल, और लाइबिलिटी 2 लाख, अच्छी बात है ना। अगर ये 2 लाख वाले पैसे मांगने आए, पैसे दो पैसे दो, मैं बोलूँगा कोई टेंशन नहीं, मैं मेरे फर्नीचर को बेच देता हूँ, मोटर कार को बेच देता हूँ, पैसा आएगा, आप रख लो आराम से, क्योंकि मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बराबर। अलग अलग स्टाइल में है, फर्नीचर मेरी प्रॉपर्टी होती है, लैंड मेरा प्रॉपर्टी होता है, व्हाट यू कॉल डिलीवरी वैन मेरा प्रॉपर्टी होता है, दुकान मेरा प्रॉपर्टी होता है, बिल्डिंग मेरा प्रॉपर्टी होता है, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी है। ऐसे इंसान को जिसकी पोजीशन अच्छी होती है वो अपने सारी जिम्मेदारियों का पेमेंट कर सकता है, उसको अकाउंट्स में कहा जाता है सॉल्वेंट पर्सन। तो प्लीज डू नोट, ओके, वहाँ पे आंसर्स आर कमिंग अप वन बाय वन। नेक्स्ट, आर्ट एंड साइंस
of recording business transaction. We call it accountancy. Okay, you can always call it bookkeeping and accountancy, but the better word is accountancy, क्योंकि उसके definition में ये दिया गया है, which is what is this subject all about. ये हमको आगे जाके सीखना है. Property of any description owned by a proprietor का मतलब है मालिक. मालिक का अगर कुछ भी है उसको कहते हैं एसेट. वो बोलेगा मेरा, हाथ मत लगा, मेरा, that becomes assets. Next point, assets which remain in the business for a short time and then can be converted into cash very easily. Again, students fail to understand कि सर इसका मतलब क्या है. Asset मतलब मेरी चीज, short time का मतलब है एक हफ्ता, एक महीना, एक साल से कम, एक साल से कम, बराबर. हाँ, तो अगर आपके पास एक ऐसा एसेट है, सोचो आपके दुकान में आपके पास गुड्स है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स, डिब्बे, प्रोडक्ट्स. आप क्या करोगे? आप उसको बेचोगे, जल्दी जल्दी बेचोगे, बराबर. एक इंसान जो ब्रेड या पाव बनाता है, जो सब लोग हर दिन खाते हैं, बराबर, तो वो जब पाव बनाता है बेकरी में, वो उसका गुड्स है. हाँ, वो ऐसा नहीं बोलेगा मैं 10 दिन बाद उसको बेचूंगा, नहीं, उसका तो 1-2 घंटे में ही वो माल खत्म होता है और झट से पैसे आ जाते हैं, बेच देता है और सामने से पैसे आ जाते हैं. उसको कहते हैं करंट एसेट, अभी का एसेट. ओके, हाँ, अगर कोई एसेट आपके पास, आपने गाड़ी खरीदी और उसको 10 साल यूज किया, बराबर, उसको कहते हैं फिक्स्ड एसेट. शॉर्ट टाइम इज करंट एसेट. 10th पॉइंट, अलाउंस गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस ऑफ गुड्स. इसको हम डिस्काउंट कहते हैं. टू बी वेरी स्पेसिफिक, ट्रेड डिस्काउंट. ओके, कि ये कैटलॉग था, इस पे ये भाव लिखा था और दुकानदार बोलता है, कैटलॉग कोई भी देखेगा, बोलता है सर जो कैटलॉग पे लिखा है 10% हम कम करेंगे, वो सबको देता है डिस्काउंट, उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट. क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव विच इज गुड. एटलीस्ट आपके पास केबीसी स्टाइल 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं. हाँ, आपके पास ऑडियंस पोल 50-50 वो तो नहीं है, बट चलो ऑप्शंस तो है. सरप्लस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस था, तो ये प्रॉफिट होना चाहिए, विच इज ऑब्वियसली दैट इज रिटन. नेक्स्ट, इन ब्लैंक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड. अकाउंट्स अलग अलग बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके. कैश बेसिस पे जब होता है, क्योंकि अक्रूअल बेसिस कुछ अलग होता है. ओके, इट्स अ डिफरेंट बेसिस. ऊपर लिखा गया है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. बट जब सिर्फ कैश पे ध्यान दिया जाता है, कैश आया लिखो, कैश गया लिखो, उसको कहते हैं कैश बेसिस. सिंपल एज दैट. ओके, द थर्ड वन, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल, पैसे नहीं मिलने वाले, फ्रॉम अ कस्टमर इज नोन एज बैड डेप्ट. ओके, डेप्ट मतलब कर्जे में, बट अगर वो कभी नहीं मिलने वाला उसे हम कहते हैं बैड डेप्ट. ओके, हर बिजनेस में होता है, क्योंकि कोई ना कोई कस्टमर ऐसा ज़रूर पैदा होता है जो हमारा पैसा हमसे भागकर चला जाएगा. फोर्थ, अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली प्रिपेयर्ड and they must disclose all material information is known as, now this is based on concepts. Concepts are nothing but thinking कि हमको अकाउंट्स किस तरह करना है. तो जब आप आपके अकाउंट्स में कोई भी चीज़ सीक्रेट नहीं रखते हो, ओके, आप पब्लिक को पूरी तरह से सारी चीज़ें बता देते हो, उस कॉन्सेप्ट को कहा गया है डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, जो हर दुकान को पूरे भारत देश में फॉलो करना है. अगर वो उसको फॉलो नहीं करेंगे तो एक तरीके से वो चीटिंग करेगी, या तो वो फ्रॉड कर रहे हैं. 5वां, अ कमोडिटी इन विच अ ट्रेडर डील्स, मतलब खरीदता है बेचता है, उसको हम गुड्स कहते हैं. शुरुआत में 1 लाइन में भी वही दिया गया था. डैश ब्लैंक मीन्स अ रेप्यूटेशन. रेप्यूटेशन मतलब इज्जत. हमने इज्जत के लिए क्या कहा था? गुडविल. बैडविल भी होता है, काफ़ी लोग गलत काम करके उनका नाम खराब होता है, बट यहाँ पर हम गुडविल की चर्चा कर रहे हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश ब्लैंक, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड
इंडिया के दुकानों के लिए, कंपनीज के लिए बनाती है, और हर स्टैंडर्ड अलग अलग एरियाज के साथ में, अलग अलग चीज़ों के साथ में डील करता है। ऊपर दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ से आया, कहाँ पे गया, किसके पास से आया, किसके पास गया, उसका पूरा हिसाब किताब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में दिया गया है। शॉर्ट फॉर्म से AS3 इसको कहते हैं। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर। पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नहीं जानना, वैसे भी वो अभी के लिए आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट थिंग, द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ लॉस इज सपोर्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जब नुकसान होता है या नुकसान होने वाला है, उसका अगर फीलिंग आता है एक दुकानदार को, वो लिख के रखता है। प्रॉफिट वो नहीं लिखता, बट अगर उसको लग रहा है कोई तो बीमार है, मुझे तैयारी करने दो, ओके, या कोई बीमार होने वाला है, या कोई बीमार हो गया तो, मेरा बिजनेस बीमार हो गया तो, नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो आप उसके लिए जो तैयारी करके रखते हो वो कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से, कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? प्लेइंग सेफ, ओके, कि अगर कुछ हो गया, होगा नहीं होगा नहीं पता, अगर कुछ हो गया, भले उसका 1% पॉसिबिलिटी है, मैं उसकी तैयारी करके रख देता हूं। इट इज बेटर सेफ देन टू बी सॉरी। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। एंट्री इज समथिंग जो बिजनेस में जो हुआ है उसको रिकॉर्ड करता है, बट काफ़ी लोगों को वो एंट्री समझ में नहीं आती, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जिसको नरेशन कहते हैं। हम आगे जाके तीसरे चैप्टर से इसकी शुरुआत करेंगे, तो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड तभी आपको हो जाएगा। 10वां, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंज, ओके, नॉट हेरा फेरी, अदला बदली, ओके, उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, पूरा पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं थी। हाँ, ट्रू और फॉल्स बताइए विथ रीजन। बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग आर वन एंड द सेम थिंग। एक्चुअली ये गलत है। बुककीपिंग अलग होता है, अकाउंटिंग अलग होता है, ओके। हाँ, अगर आप ऊपर पढ़ो, बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। बुककीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जो लिखा गया है, ओके, उसका हम एनालिसिस कैसे करें, ओके। सो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप कभी ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालना, ओके, वो एक अलग प्रोसेस होता है, और उसको फिर माइक्रोस्कोप के नीचे डालकर या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट के नीचे डालकर एनालाइज करना कि इसमें रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, प्लेटलेट काउंट ना, बड़ा रिपोर्ट आता है आपको, उसको एनालिसिस कहते हैं। पहले आपका ब्लड सैंपल लेते हैं, उसके बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। तो बुककीपिंग इज लाइक दैट। बुककीपिंग पहले क्या है? पहले रिकॉर्ड कर लो नंबर्स को, और फिर वो नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो होता है, एनालिसिस, उसको अकाउंटिंग हम कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंजर्वेटिज्म मीन्स टू फॉलो सेफ साइड। यस, मैंने थोड़े ही पहले बताया था कि नॉर्मली एक दुकानदार जो इस कॉन्सेप्ट को या प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो हमेशा अपने आप को कोशिश करता है कि सेफ रहे, ओके। मतलब क्या है? अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है, फोटोज है, मैंने उसको मोबाइल में रखा है, पर मैं बोलूँ अगर डिलीट हो गया तो मैंने उसको कंप्यूटर में भी रखा है, मैं बोलूँगा नहीं नहीं उधर से भी डिलीट हो गया तो मैंने उसको गूगल ड्राइव पे रखा है, जिसको क्लाउड बैकअप कहते हैं, बराबर। तो मेरे पास 1 बैकअप है, 2 बैकअप है, 3 बैकअप है, मतलब मेरे को सेफ रहना है, एकदम ज़्यादा नहीं, बट मेरे को सेफ रहना है, उसको कंजर्वेटिज्म कहते हैं। 3rd वन, डबल एंट्री सिस्टम, ये हम दूसरी चैप्टर में इसकी चर्चा करेंगे, इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बराबर है। ट्रू, व्हाट डज दैट मीन? ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब मैं कोशिश भी कर लूँ, इतना मज़ेदार ताली तो नहीं आने वाला, 2 हाथ से ज़रूर। इसको डुअल कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट। तो अकाउंट्स में डबल एंट्री का जो थिंकिंग है वो डुअल एस्पेक्ट पे है कि एक दूसरा होना ही चाहिए, ए तो बी होना ही चाहिए, सी तो डी होना ही चाहिए, इसको कहते हैं डुअल। ये हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर से, तो थोड़ा और बेटर मैं ट्रेनिंग आपको दे पाऊंगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज एन एसेट। पहली बात, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बिजनेसमैन को ये हक दिया गया है, ये अधिकार
कि अगर उनके खाते में 5 रुपये है तो वो 7 रुपया विड्रॉ कर सकते हैं, जो मैथ्स के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 में से आप 7 कैसे निकालोगे। ये 2 रुपया बैंक देता है मदद के रूप में, लोन के रूप में, उसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। 5 रुपये से ज़्यादा आपने निकाला तो ये एसेट नहीं, ये बैंक का पैसा है, ये लाइबिलिटी है। तो ये जो है ये फॉल्स है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लाइबिलिटी होती है, एक एसेट होता नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, ये लिखने की चिंता आप ना करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपके दोस्तों को भी बता दीजिए कि टेलीग्राम चैनल हमारा है और हमारा वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर पाओगे। डोंट वरी अबाउट राइटिंग दिस राइट नाउ, अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन whose assets are more than his liability। सच है, एसेट जब ज़्यादा होता है और लाइबिलिटी कम, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अगर उल्टा होगा तो उसको इनसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं, जिसको आप बैंकरप्ट या कंगाल ऐसे भी कह सकते हो। ओके, ट्रू और फॉल्स अगेन विथ रीजंस। कैश डिस्काउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्लीज नोट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हम चैप्टर नंबर 3 से सीखने वाले हैं, तो अभी के लिए थोड़ा अटपटा है आपको समझना। आपको याद रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को कहां पर भी लिखा नहीं जाता, कैश डिस्काउंट को पक्का लिखा जाता है। इट इज रिटन, बिल में लिखा जाता है, अकाउंट्स में लिखा जाता है। तो इधर बोला डज नॉट अपीयर, वो गलत है, इट अपीयर्स। ट्रेड डिस्काउंट डज नॉट अपीयर। ओके, मूविंग ऑन। अ ट्रांजैक्शन इज कंसर्न्ड विथ मनी एंड मनी इज वर्थ। बराबर, एक ट्रांजैक्शन अगर फ्री का है तो उसको हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा, कोई भी इंटरेस्ट उसमें दिखाने वाला नहीं है। बट एक लेन देन जब होता है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू, कीमत जरूर होना चाहिए। ओके, तो ही लोग उसके बारे में चिंता करेंगे। अगर वो फ्री है कोई भी चिंता करने वाला नहीं है। 8वां मुद्दा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सही है, बिकॉज देखो बिजनेस खुद से, एक दुकान, एक व्यापार, एक कंपनी अपने आप से अपना मुंह तो खोल नहीं सकती है, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग नहीं है। तो कैसे बिजनेस दूसरों को बताएगी, तुझे पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये किया मैंने वो किया, अकाउंट्स में नजर आता है। तो अकाउंट्स इज लाइक द लैंग्वेज, कि वो बात कर रहा है दूसरों से। ओके, 9th, इन अर्लियर टाइम्स ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वॉज डन बाय ओनर्स। एक्चुअली मालिक जो होता है ना, वो अकाउंटिंग नहीं करता, वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। वो नॉर्मली कोई छोटा दुकान होगा तो वो अपने गल्ले पर बैठेगा, अपने कैश बॉक्स का ध्यान देगा। बाकी जो हजाम पट्टी है लिखने का जो मेहनत है, वो किसी को अपॉइंट करेगा कि आप अकाउंटेंट हो, आपको इतना पगार मिलेगा, आपको ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती रहनी है। तो ओनर्स तो नॉर्मली करते नहीं है, नॉर्मली नहीं करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, 10th, bookkeeping is useful to find out all tax liabilities. This is true because when you do bookkeeping, उसके अंदर आप आपके इनकम को, एक्सपेंसेस को अलग अलग आप लिखते हो, तो आपको आपका प्रॉफिट लॉस का अंदाज़ा हो जाता है। और जैसे ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, लॉस होगा तो आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर प्रॉफिट होगा तो आपको कितने प्रॉफिट पे टैक्स देना है इसका ज़रूर आपको पता चल जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन 5 है। डू यू अग्री और डिसअग्री? सिंपल है, आपको यहाँ पे कोई रीजंस नहीं देने हैं, ट्रू एंड फॉल्स में आपको रीजंस देने थे। अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू दी ओनर। ऐसा नहीं है, अगर अकाउंटिंग हो, ओनर को तो काम आता ही है, गवर्नमेंट को काम आता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि उनको टैक्स कितना मिलने वाला है। बराबर, जो लोग बिजनेस को कर्जा देते हैं, लेंडर उनको भी काम आता है, ताकि उनको पता चलता है कि जो सामने वाले दुकानदार को हम लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं, हम कर्जा दे रहे हैं, क्या ये उतना कमाता है कि हमको हमारा कर्जा लौटा पाएगा। तो वो काफ़ी लोगों के लिए काम आता है। बराबर, हाँ। इसके बाद बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड अ साइंस। बराबर है, क्योंकि बुक कीपिंग जब हम करेंगे, हम बड़े नीट तरीके से, एकदम सही तरीके से उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। साइंस क्योंकि ऐसा नहीं है मंडे को हम अलग कुछ करेंगे, ट्यूसडे को अलग। जो रूल हम फॉलो करेंगे वो हर दिन, हर महीने और हर साल हम फॉलो करेंगे। अगला, बिल्स पेएबल
इज एन एसेट ऑफ द बिजनेस। ये जो वर्ड है ना पेएबल, पेएबल का मतलब क्या है, पराया, इसके लिए तो हमको भरना है, इन चीजों को लाइबिलिटी कहा जाता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, ये एसेट नहीं है, ये गलत है कहना, इसके लिए हमने इसको कहा है डिसअग्री, ओके, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी। इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ओनली नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। डिसअग्री क्यों, हम मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ लेन देन होता है उसका पैसे में कीमत है 1,10,000 रुपया, 1 करोड़, तो लिखेंगे, ओके। जैसे मैंने एक बार कहा है कि उसका कीमत 2 हार्ट है, दिल, बदली में 5 दिल आया, नहीं, उसका पैसे में हम कोई कीमत लगा नहीं सकते हैं। प्यार मोहब्बत का हम पैसे में कोई कीमत लगा नहीं सकते हैं। तो अगर कोई लेन देन पैसे में, पैसे के वैल्यू में किया जाता है तो हम बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में उसको लिखेंगे, ओके। द एसेट्स विच गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द बिजनेस आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट। बराबर, 1 साल से कम होगा तो उन एसेट्स को करंट एसेट कहते हैं, 1 साल से ज्यादा 10, 20, 30, 40 साल तो उन एसेट्स को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही है, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स फॉर चैप्टर नंबर 1। अगेन PDF will be available on the Telegram as well as on the website for download. You can and you should share this whenever it is available with as many of your friends as possible. Complete the following sentences. Revenue arising as a result of business transactions is known as income. Revenue मतलब कमाई, जो मैं लेन देन करता हूँ। वेरी सिंपल, अगर मैं चाय बेचता हूँ तो वो मेरा हर दिन का काम है, तो उससे जो पैसे आएंगे उसको क्या कहेगी, इनकम कहेगी, और क्या है, ओके। हाँ, तो वो हर दिन का काम है मेरा। हाँ, पॉइंट नंबर 2, एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका है अगर वो ज्यादा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस से, तो उस एक्सेस को, वो जो ज्यादा है, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिजनेस का प्रॉफिट। द वर्ड ऑपरेटिंग का मतलब है बिजनेस का, दुकान का, ओके। अभी ऐसा मत सोचिए सर अगर बिजनेस है तो उसके अंदर बिजनेस की चीजें होगी, ऐसा नहीं होता, ओके। जैसे मैंने कहा मैं चाय बेचता हूँ, ओके, मेरे एरिया में नुक्कड़ नुक्कड़, गली गली में चाय के बहुत ज़्यादा टपरी लगे हैं या अच्छे अच्छे दुकान है। अगर उस चाय वाले को चाय से 10 रुपये आता है तो वो तो उसका ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है। हाँ, बट कभी उसे जैकपॉट लगा, मतलब उसको लॉटरी लगी और उसको 10 लाख रुपया साथ में मिला, वो उसके बिजनेस का इनकम नहीं है, ओके। वो उसके चाय के बिजनेस के वजह से उसने कमाया नहीं है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो जाता है, ओके। पॉइंट नंबर 3, एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर। रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, रेवेन्यू का मतलब क्या है, वो खर्चा जो किया जाता है लगभग हर दिन, बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। इसको हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस बट थोड़ा खींच जाता है, 2-3 साल के लिए ये काम आता है। अगर सोचो मैंने मेरे बच्चों को, मैंने 2 बच्चे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दिया, बट उनको बोला देखो ऐसा नहीं है कि 3rd स्टैंडर्ड में एक यूनिफॉर्म, 4th में एक अलग यूनिफॉर्म, नहीं, एक यूनिफॉर्म दे रहा हूँ, 2 साल खींचो, इसको 2 साल तक तुमको यूज करना है, फटेगा तो उसी को हम सिला लेंगे 2 साल तक। तो 1 साल से ज्यादा, हाँ 20 साल भी नहीं, ऑब्वियसली उसको कहते हैं डिफर्ड। रेवेन्यू है बट थोड़ा खींचा है उसको। नेक्स्ट, द अमाउंट डिडक्टेड बाय द सेलर, दुकानदार, फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ सेल, डिस्काउंट। बट कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, मतलब वो मेल फीमेल हो, लंबा नाटा हो, पतला दुबला हो, सबको दिया जाता है। अ पर्सन टू होम बिजनेस ओज मनी फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज नोन एज, एक ऐसा इंसान ऑलरेडी किया है जिसको हमको पैसे देने हैं, क्रेडिटर, ओके। हाँ, सो ये था हमारा लिस्ट which completes your objectives for chapter number 1, which is applicable for FYJC accounts chapter 1. Very soon we will be starting with chapter number 2. The PDF of everything which I have discussed for the past around 20 minutes or so, वो completely आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ जुड़ जाइए और
दूसरा, वेबसाइट के माध्यम के द्वारा भी आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। जब भी आप डाउनलोड करते हो तो प्लीज़ करके आप आपके दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में भी जानकारी आप शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट ये चैनल के लेक्चर्स के द्वारा हो सके। यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 सारे जो कॉमर्स फील्ड से कनेक्टेड है और जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड SPOC से कनेक्टेड है, सारे लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, टिल द टाइम आई मीट यू अगेन, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। आई होप यू आर सराउंडेड ऑलवेज विद लविंग पीपल। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।